Good morning, students. Today we are start a new chapter, that is basic concept of basic geometrical idea. Basic geometrical idea. IDEAS. Ideas means we all know about idea. They providing a 4G network to our idea. Okay, but that idea is not a geometrical idea. We have a chapter basic geometrical idea. The first of all, what is mean by geometry? In previous standards we already studied about the geometry. Geometry has a long and rich history. The term geometry is the English equivalent of the Greek word. Geometry is the Greek word that derived from the Greek word geometron. Geometry means Geometron. Geometry word derived from the Greek word. Which word? Greek word. जो ग्रीक वर्ड था उससे ज्योमेट्री वर्ड बनाया गया है, लेकिन किस वर्ड से बनाया गया है? जियोमेट्रॉन. दैट मीन्स जीईओ, जियो, नॉट द जियो डंग डाना डंग, वैसे नहीं. ये जियो अलग है, वो जियो अलग है. जियो मीन्स अर्थ. Geo means earth, and metron means measurement. Metron means measurement. According to histories, the geometrical ideas shapes up in ancient times, probably due to need in art, architecture and measurement. This includes occasions when the boundaries of the cultivated lands had to be marked without giving room for complaints. Construction of magnificent places, temples, lakes, dams and cities. Art and architecture propped up these ideas. Even today, geometrical ideas are reflected in all forms of art, measurements, engineering, cloth designing, etc. You observe us and use different objects like boxes, tables, books, the tiffin box you carry to your school for lunch, the ball with which you play, and so on. All such objects have different shapes. The ruler which you use, the pencil with which you write are straight, the pictures of the bangle, the 1 rupee coin or a ball appears round. Today we are learn a basic geometrical ideas. These are the examples, such as जो आपका टिफिन बॉक्स है, उसके बाद आप जो बॉल खेलते हैं उसका शेप हो, बैंगल का शेप हो, आपके कंपास बॉक्स का शेप हो, आपके डोर का शेप हो, इन सभी इसमें क्या है? ज्योमेट्रिकल आइडियाज है. और वो आइडिया कहाँ से आए देखो फिर. और उसमें सबसे फर्स्ट आइडिया है पॉइंट. बाय अ शार्प टिप ऑफ द पेंसिल मार्क डॉट ऑन द पेपर. पॉइंट मीन्स, नाउ सी, पॉइंट. दिस इज द फर्स्ट geometrical concept. That means all geometry is surrounding with the points. Now see, point is a small dot. आपके पास समझो एक छोटी सी पेंसिल है, उसको अगर आपने अच्छे से शार्प किया तो उससे आप जो डॉट निकालेंगे आप उसको पॉइंट बोल सकते हैं. शार्प द टिप, थिनर विल बी द डॉट. द ऑलमोस्ट इनविजिबल टिनी डॉट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ अ पॉइंट. मतलब बहुत ही शार्प अगर आपकी पेंसिल हो, उससे आप क्या करेंगे? एक डॉट निकालेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि आप इसे क्या बोल सकते हैं? पॉइंट. बट इन ज्योमेट्री, पॉइंट इज नॉट एनीथिंग.
anything. Then what is point? Point in geometry, point means not anything but a point determines a location. The point is used for to denote the locations. अगर आपने कोई मैप देखा है, आपका मैप, तो उसमें आपको दिखाने के लिए आपका जब लोकेशन आपको निकालना होता है तो वहां पे एक पॉइंट दिखाई देता है. दैट मीन्स पॉइंट इज यूज्ड एज to determine a location or to denote a location. A point determines a location. समझो, a point is used as to denote a location. किस लिए यूज करते हैं हम पॉइंट को? टू डिनोट अ लोकेशन. टू डिनोट अ लोकेशन किस लिए यूज करते हैं? टू डिनोट अ लोकेशन दिखाने के लिए हम उसका यूज करते हैं. जैसे कि समझो यहाँ पे एक पॉइंट दिया, आप जब मैप निकालते हो तो वहां पे समझो दिस इज योर होम और ये यहाँ पे है आपका स्कूल, बराबर नहीं? तो इन दोनों का लोकेशन दिखाने के लिए आप किसका यूज करते हैं? पॉइंट का. एंड पॉइंट को हम नाम भी देते हैं. इट इज गिवन नेम बाय अ कैपिटल लेटर्स. नेम कैसे देंगे आप पॉइंट्स को? समझिए ये एक आधा पॉइंट है जिसको आप ए बी, समझिए यहाँ पे बीच में पॉइंट, इसको सी, ऐसे कुछ नहीं, सीरियल वाइज देना है. आप यहाँ पे समझो पॉइंट, इसको एक्स भी नाम दे सकते हो. यहाँ पे एक आधा पॉइंट है वाई भी, और इसको रीड कैसे करेंगे? पॉइंट एक्स, पॉइंट वाई, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट ए. बट the point is does not have dimensions. Dimensions means point does not have dimensions. That means length, width and depth. That means point does not have length, उसको लेंथ भी नहीं है, विड्थ भी नहीं है और डेप्थ भी नहीं है. इसका मतलब समझे कि यहाँ पे आपने निकाला तो इसको कुछ ना कुछ तो साइज होगी कि नहीं. लेकिन इन ज्योमेट्री पॉइंट डज नॉट हैव लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ, इसमें से कुछ भी नहीं. इसका मतलब पॉइंट इज नॉट रियली एनीथिंग. रियल में कुछ है क्या? पॉइंट मीन्स कुछ भी नहीं है, लेकिन हम उसका यूज किस लिए करते हैं? टू डिनोट अ सम लोकेशंस, प्लेसेस. जैसे कि समझो यहाँ पे आप खड़े हो तो आपके नॉर्थ साइड में दिल्ली है, साउथ साइड में कन्याकुमारी है, ईस्ट साइड में कोलकाता है और वेस्ट साइड में क्या है? वेस्ट साइड में गांधीनगर है. सेम एज लाइक दैट वी यूज द पॉइंट टू लोकेट अ सम प्लेसेस डिनोट करने के लिए. और आप ऐसे भी जनरली बोलते होंगे ना, आपके फ्रेंड के साथ अगर आप कहाँ पे जा रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं? मैं कॉलेज पॉइंट पे हूँ, इस पॉइंट पे हो, उस पॉइंट पे हो. जो मतलब आप जगह का नाम बताते हो उसको डिनोट करने के लिए आप क्या करते हो? पॉइंट्स यूज करते हो. और किसी भी जगह को डिनोट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पॉइंट्स. अगर आपने मैप देखा तो मैप में अच्छे से पॉइंट्स को यूज करते हैं. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज दैट द लाइन सेगमेंट. Line segment is also a very good idea. Now see, we have one activity to identify a line. This is our paper. 1 minute. You wait. I will bring the paper. See, we have one paper. Okay, this paper does not have a fold. Now I fold this page at once. See, मैंने इस पेज को फोल्ड किया है. फोल्ड करने के बाद देखो ये जो लाइन आप लोगों को दिख रही है यहाँ पे ऐसे मैंने फोल्ड किया. अब जब मैं इसको ओपन करूंगा तो आपको इसके ऊपर एक मार्क दिखाई दे रहा है. दिखाई दे रहा है एक मार्क, दिखाई दे रहा है एक मार्क. तो ये जो भी मार्क आपको बीच में से दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. दिस इज कॉल्ड अ line segment. तो line segment, how we define the line segment? Now see, say our second concept is that line
सेगमेंट। आपको एक्टिविटी समझ में आ गई? लाइन सेगमेंट। नाउ सी लाइन segment, our first line segment. It's a very easy, but here is a point A and here is a point B. Point A and point B. Now see, अगर समझो आपको बोला जाए तो पॉइंट A के पास से आपको पॉइंट B के पास जाना है, तो बहुत तरह के अलग अलग रास्ते रहते हैं। जैसे आपके स्कूल, समझो ये आपकी स्कूल है और ये आपका होम। ओके, तो समझो आपको घर से निकलने के बाद स्कूल में जाना है, बराबर है। तो घर से निकल के स्कूल में जाने के पास ऐसे बहुत सारे रास्ते रहते हैं, बराबर है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे रास्ते रहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो एक रास्ता ऐसा भी रहता है, ऐसे स्ट्रेट अगर इसके पास से जाता हो तो ये बहुत सारे लाइन हो गए ना, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। फिर इनमें से लाइन सेगमेंट कौन सी है? नाउ सी द लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, the shortest distance between two points is called line segment, is called line segment. The shortest, shortest, shortest distance between two points is called line segment. अब देखो A से B तक जाने के लिए आप ये भी लाइन जा रही है B तक, ये भी लाइन जा रही है, ये भी, लेकिन इनमें से एक लाइन जो है वो कैसे वो बराबर स्ट्रेट है, और यही क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, जब हमने मार्क वो पेज लिया था और उसके ऊपर एक मार्क ऑब्टेन किया था, उसे भी क्या बोलते हैं हम? लाइन सेगमेंट बोला था आपने, बराबर ने? We have so many examples of line segments. जैसे कि आपने कभी विंडो देखी है, आपके विंडो के ऊपर जो रॉड्स रहते हैं, रॉड, तो उसको आप क्या बोल सकते हो? लाइन सेगमेंट। एंड लाइन सेगमेंट इज डिनोटेड एज लाइक दैट, सी ए बी। एंड लाइन सेगमेंट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट भी किससे बनी है? ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ आए और फिर इससे क्या बनी? लाइन सेगमेंट, जैसे कि एक्स एंड वाई। तो आप लाइन सेगमेंट को कैसे लिखेंगे? जब उसको नाम देना है तब, ऐसे कुछ नहीं, तो इसको बोलेंगे आप सेगमेंट ए बी, ऐसे भी बोल सकते हो और ऐसे भी सेगमेंट बी ए। और एक रिप्रेजेंट है उसके, इट इज डिनोटेड एज ए बी एंड एक लाइन उसके ऊपर, इसको कैसे रीड करेंगे आप? सेगमेंट ए बी, इसे रीड करेंगे सेगमेंट ए बी। यहां पे है एक्स वाई, इसको कैसे लिखेंगे आप? एक्स वाई और इसके ऊपर एक लाइन, इसका मतलब सेगमेंट एक्स वाई। समझ में आ रहा है आपको? हाउ वी डिनोट द लाइन सेगमेंट एक्स वाई और ए बी। आप लिखते समय ऐसे भी लिख सकते हो, सेगमेंट एक्स वाई और सेगमेंट वाई एक्स, ऐसे भी। और अगर आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बोला, इट इज डिनोटेड बाय एक्स वाई और वाई एक्स वाई, हम दोनों तरफ से लिख सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद समझो है आपको समझ में आ रहा है? कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम फिर से चेक करेंगे। तो कल आते समय आपको क्या करने हैं? ऐसे 5 लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करके लाने। ड्रॉ अ 5 लाइन सेगमेंट्स and give the name. Understand?